नादनादा मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं दक्षिण भारत। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। कोयम्बटूर में नेचुरल फार्मिंग समिट। वजीर-ए-आज़म मोदी ने मुल्क के किसानों को दी बड़ी सौगात। नामियाती खेती के फरोग देने वालों को भी पेश किया एजाज। वज़ीर-ए-आज़म ने पुट्टपर्ती में सत्य साई बाबा के 100 साला तकरीब में शिरकत की। प्रोग्राम में वज़ीर आला नायडू और दीगर नामवर शख्सियात भी रहीं शामिल। तेलंगाना में 1 करोड़ ख्वातीन को साड़ियां देने के अमल का आगाज। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इंदिरा साड़ी स्कीम का किया इफ्तिताह। विशाखापट्टनम स्टील की निजीकारी पर शर्मिला रेड्डी का शदीद एहतजाज। कहा मुलाजमीन के खूने जिगर से बनी फैक्ट्री को अडानी के हवाले किया जा रहा है। और अब खबरों की तफसील। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से खबर है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट में शिरकत की, जहां इन्होंने कुदरती, नामियाती और पायदार ज़राअत को फ़रोग़ देने वाले किसानों और माहिरीन से मुलाकात की। पीएम मोदी ने नुमाइश का दौरा किया और किसानों के तजुर्बात और इख्तराआत के बारे में मालूमात हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म ने कुदरती और नामियाती खेती को फ़रोग़ देने वाले नुमाया शख्सियात को एजाज़ात भी पेश किए और कहा कि पायदार ज़राअत मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए बुनियादी अहमियत रखती है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त के तौर पर 18,000 करोड़ रुपए की रकम मुल्क भर के 9 करोड़ किसानों के खातों में मुंतकिल की। अपने खिताब के दौरान मोदी ने कहा कि जब इन्होंने किसानों को देखा तो इन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे तमिलनाडु में बहार की हवा चल रही है। जब मैं यहां मंच पे आया तो मैं देख रहा था काफी किसान भाई बहन वो अपना गमछा घुमा रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि बिहार की हवा मेरे आने से पहले पहुंच गई है। जब मैं यहां मंच पे आया तो मैं देख रहा था काफी किसान भाई बहन वो अपना गमछा घुमा रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि बिहार की हवा मेरे आने से। और नाज़रीन, इस वक्त आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला कड़पा में मौजूद हैं, जहां अन्नदाता सुखी भवा प्रोग्राम में वो लोगों से मुलाकात करें। आपको सीधे वही लिए चलते हैं। బోలెడన్ని సమస్యలున్నాయి. సమస్యలు ఉన్నాయని మనం అనుకుంటే సమస్యలు మనల్ని మింగేస్తాయి. సమస్యల్ని మనం పరిష్కారం చేయగలుగుతామనే ధైర్యం వస్తే ఆ సమస్య మన పరిష్కారం చేసే శక్తి వస్తుంది. నేను అందుకే ఒక విషయం మీ అందరికీ 5 ప్రిన్సిపల్స్ మీరు చూస్తే, ఒకటి నీటి భద్రత, దాని గురించి నేను చెప్తాను. రెండోది డిమాండ్ ఆధారిత పంటలు, మనుషులు, దాని గురించి కూడా నేను మాట్లాడతాను. మూడోది అగ్రిటెక్, అగ్రికల్చర్లో టెక్నాలజీ ఏమేమి వాడాలి, ఎన్ని సమస్యలకు పరిష్కార మార్గం వస్తుంది, అది ముఖ్యం. నాలుగోది ఏదైతే వ్యవసాయ ఆధార పరిశ్రమలు, మనం పండించిన పంట మన ఊర్లో అమ్మడమే కాదు, అదే ప్రధానమంత్రి గారు చెప్పింది, మనము పండించిన పంటలు ప్రపంచమే వేదికగా ప్రపంచం మొత్తం సరఫరా చేయగలిగిన రోజు వస్తే అప్పుడే ఈ రైతాంగం బాగుపడతారు, నిలదొక్కుంటారని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. దానికోసం ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్కి వెళ్ళాలి. ఇంకో పక్క ఈ 4 విధానాల్లో కూడా ఓసారి ఇబ్బంది వస్తే ప్రభుత్వాలు ఆదుకోవాలి. ఆ కార్యక్రమం ఇప్పుడు చేస్తున్నాం. ఇంకా ఆదుకోవాలి, రెగ్యులేట్ చేయాలి, ఆధునికమైన నాలెడ్జ్ మీకు అందుబాటులో పెట్టాలి. ఈరోజు మీరు ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే, నేను ఏదైతే నీటి భద్రత గురించి మాట్లాడాను, నాగరిక ప్రపంచం మొత్తం ఎక్కడైతే బాగా అభివృద్ధి అయిందంటే ఎక్కడ నీళ్లుంటే అక్కడే అయింది. ఈ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ రాయలసీమలో నేను కూడా పుట్టా, ఈ రాయలసీమలో నేను కష్టాలు చూశా. రాయలసీమ మీద ఆశ వదులుకున్నారు, ఎడారిగా మారిపోతుందన్నారు. ఎడారిగా మారిపోయిన సూచనలు కూడా వచ్చాయి. ఈ రాయలసీమ ఒకప్పుడు రతనాల సీమ,
ఇప్పుడు రాళ్ల సీమగా మారిపోయింది, ఎడారిగా మారిపోతుందంటే మొట్టమొదటిసారిగా మన ఆశలు చిగురించే విధంగా చేసిన వ్యక్తి నందమూరి తారక రామారావు గారు. నేను ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత కూడా అనంతపూర్లో రాయదుర్గం ఎడారిగా మారిపోతా ఉంటే డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి ఎడారిగా మారకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలో కార్యక్రమాలు చేశాను. అక్కడి నుంచి మన ప్రయాణం కొనసాగింది. దేశంలో ఇప్పుడు కూడా రెండు జిల్లాలు తక్కువ వర్షపాతం పడే జిల్లాలు, అది అనంతపురం, జైస్వాల్, ఈ 2 జిల్లాలు ఉన్నాయి. అలాంటి ఉంటే ఈరోజు అందరి నీవా తీసుకొచ్చాం, నగిరి గాలేరు తీసుకొచ్చాం, తెలుగు గంగ తీసుకొచ్చాం, కేసీ కెనాల్ ని అనుసంధానం చేశాం, హెచ్ఎల్సి అన్ని తీసుకున్నాం. ఇవన్నీ చేస్తే ఎప్పుడు आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के पुट्टापर्ती में साईं बाबा की महासमाधि में पूजा की। पूरे हिंदुस्तान और बैरून मुल्क से हजारों अकीदतमंद इस तारीखी मौके पर शिरकत के लिए जमा हुए। ट्रस्ट और जिला इंतजामिया की तरफ से वसी इंतजाम किए गए हैं। पेश एक रिपोर्ट। पुट्टापर्ती कस्बा आंध्र प्रदेश का रूहानी मरकज समझा जाता है। यहाँ की फजा आज एक बार फिर अकीदत और रूहानियत से गूंज उठी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने श्री सत्य साई बाबा के जन्म सदी तकारीब में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म के साथ आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू, नायब वज़ीर आला पवन कल्याण और कई शख्सियात मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने हिल व्यू स्टेडियम पहुंचकर साई बाबा की महासमाधि पर हाजिरी दी। वैदिक रसूम के दरमियान पुजारियों ने वज़ीर-ए-आज़म को आशीर्वाद दिया और पीएम मोदी ने पुट्टापर्ती साई बाबा को खिराज अकीदत पेश किया। पुट्टापर्ती हिल व्यू स्टेडियम में सत्य साई की बरसी की तकरीबात मुनक्किद की गई। उधर इस मौके पर मोदी ने साई बाबा की जिंदगी, तालीमात और अजीम इंसानी खिदमात को याद किया। साथियों, मुझे संतोष है कि श्री सत्य साई बाबा की प्रेरणा से साई सेंट्रल ट्रस्ट और उससे जुड़े संगठन सेवा को ऑर्गेनाइज, इंस्टीट्यूशनल और लॉन्ग टर्म व्यवस्था के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। आज एक व्यवहारिक मॉडल के रूप में हमारे सामने है। आप सभी पानी, हाउसिंग, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, डिजास्टर सपोर्ट और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में अद्भुत कार्य कर रहे हैं। मैं कुछ सेवा कार्यों का विशेष तौर पर जिक्र करना चाहूंगा। जैसे रायलसीमा में पीने के पानी की गंभीर समस्या थी, तब ट्रस्ट ने 3000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी पाइपलाइन बिछाई। ओडिशा में बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए 1000 मकान बनाए। जो गरीब परिवार पहली बार श्री सत्य साई अस्पतालों में आता है, वो देखकर दंग रह जाता है कि अस्पताल में बिलिंग का कोई काउंटर ही नहीं है। यहां इलाज भले मुफ्त है, लेकिन मरीजों और उनके परिजनों को किसी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता। इन तकारीब में वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने साई बाबा की नाकाबिले फरामोश खिदमात का जिक्र करते हुए कहा कि बाबा मोहब्बत, शफकत और खिदमत का मुजस्सम नमूना थे। उन्होंने याद दिलाया कि सत्य साई ट्रस्ट ने 30 लाख लोगों को पीने का साफ पानी फराहम किया, 102 तालीमी इदारे कायम किए और मुल्क भर में जदीद अस्पतालों में मुफ्त तिब्बी सहूलियात पहुँचाई। Spiritual power gave people across the world, some who had never heard of Sai Baba, an intuition, giving a meaning to the purpose of their life through peace and service. Many from across the world have come voluntarily to serve, from doctors treating patients for free to billionaires voluntary service of devotees. This is what Sri Baba meant by Manava Seve, Madhava Seva. Wherever I go in any country, when I say I am from Andhra Pradesh, many foreigners tell me, we have visited Puttaparthi, we have received Baba's blessings,
This is the greatness and divine glory of Baba. People of all religions and all communities from around the world found peace here. They found solutions to their difficulties and problems. Those who came with burdens returned with renewed energy. पुट्टापर्थी साईं बाबा की इन तकारीब में मशहूर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी शिरकत की, जिन्होंने जज्बाती अंदाज में कहा कि साईं बाबा ने न सिर्फ उन पर कर्म फरमाया बल्कि जिंदगी की सिमत भी दिखाई। Baba had this ability to be with you wherever in the mental space, wherever you were. And why I say this, because there were a number of questions going on in my head, whether should I be asking him or not, is it appropriate to ask? And without asking those questions, Baba had answered those questions. That was an unbelievable experience for me, because I was thinking, how did you know what was going on in my head? And he had already answered, blessed me, given me direction. यहाँ मुंतज़िमीन ने कहा कि श्री सत्य साई बाबा के जन्म सदी साल पर पुट्टापर्थी में मुनक़्क़िदा ये रूहानी इज्तिमा न सिर्फ अक़ीदत का इजहार है बल्कि खिदमत क़ल्ब के उस पैगाम की तजदीद है जो सरहदों से परे पूरी इंसानियत को एक रिश्ते में बांधता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। सऊदी अरब बस हादसे में उमरा ज़ायरीन जाबाक होने पर AIMIM के सदर असदुद्दीन अवैसी ने गहरे रंजो गम का इजहार किया। अवैसी ने बताया कि उन्होंने कुछ देर कबल हिंदुस्तानी सफ़ीर सुहेल एजाज़ खान से बात की, जो इस वक्त मदीना में मौजूद हैं, और रियासती वज़ीर अज़हरुद्दीन, MLA माजिद हुसैन और सऊदी हुक्काम के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। आज अभी थोड़ी देर पहले हमारे जो एम्बेसडर साहब हैं, मेरी उनसे बात हुई और वो मुझे ये बताए कि एम्बेसडर सोहेल एजाज़ खान साहब मुझे अभी बात किए, मैं उनसे बात किया, वो बताए कि वो ख़ुद मदीने में है और पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे मिनिस्टर अज़हरुद्दीन साहब के साथ, और हमारे MLA माजिद हुसैन भी वहाँ पर हैं उनके साथ, और वो सऊदी अथॉरिटीज़ से वो पूरा कोऑर्डिनेट करके, कोऑपरेशन करके, और भी यहाँ के जो विक्टिम के फैमिलीज़ है वो अब दोपहर में पहुँचने वाले हैं मदीने को, तो पूरा जल्द से जल्द जो भी उसकी फॉर्मेलिटीज़ मुकम्मल करना है और फिर उनकी तदफीन अमल में लाना है, उसके ऊपर वो वहाँ पर है एम्बेसडर साहब। और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी, PMO से, फॉरेन सेक्रेटरी भी उनसे टच में है। तो बड़ा ही अफसोसनाक और दर्दनाक एक वाक़या हुआ कि 45 लोगों की मौत हो गई, एक ख़ानदान के 18 लोग, किसी ख़ानदान के 6 लोग। अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे और अल्लाह उनके ख़ानदान वालों को सब्र। और सऊदी में हुए इस हादसे के बाद कर्नाटक के हुबली शहर में भी गम की लहर दौड़ गई। रियासती हुकूमत के चीफ व्हिप सलीम अहमद ने अब्दुल गनी के अहल खाना से मुलाकात की। पीर की सुबह मक्का से मदीना जाने वाली एक बस डीजल टैंकर से टकराकर खौफनाक आग की लपेट में आ गई थी, जिसमें 42 हिंदुस्तानी जाबाक हुए। फौत होने वालों में हुबली के 44 साल के अब्दुल गनी भी शामिल हैं। वो सऊदी में ड्राइवर की मुलाजमत करते थे और हैदराबाद के दोस्तों के साथ उम्रा अदा करने गए थे। सलीम अहमद ने गमजदा ख़ानदान को तसल्ली देते हुए कहा कि इस साने पर वज़ीर आला से बात कर रहे हैं ताकि हुकूमत की जानिब से ज़रूरी माली इमदाद और हर मुमकिन ताउन फराहम किया जा सके। मैं अकेला जो है और जो काम कर रहा था दुबई में, मैं कहा उनको क्या इस वाक़े को CM को हम ब्रीफ करेंगे। हालांकि मैंने चीफ सेक्रेटरी से बात किया है और CM सेक्रेटरी से बात किया मैंने, तो उनके रिपोर्ट वेट कर रहे हो। जब रिपोर्ट आएगा हम पूरी कोशिश करेंगे कि CM को कन्विंस करके जो भी कॉम्पनसेशन देना है। और कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने बेंगलुरु में साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को खिराज पेश किया। सिद्धरामैया ने इंदिरा गांधी के दौर में कायम किए गए कर्नाटक स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के 50वें सालगिरह स्वर्ण महोत्सव का इफ्तिताह किया। बताया गया है कि इंदिरा गांधी ने कर्नाटक स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के क़याम में अहम किरदार अदा किया था, क्योंकि वो माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में आलमी सतह पर तशवीश ज़ाहिर करने वाली पहली वज़ीर आज़म थी। इनकी इसी दूरअंदेशी के नतीजे में सन 1974 में पूरे मुल्क में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कायम करने की बुनियाद रखी गई। तकरीब की सदारत
KSPCB के सदर और रुकन असम्बली नरेंद्र स्वामी ने की, जबकि रियासती वजीर ईश्वर खंड्रे, चिलवरिया स्वामी, MC सुधाकर, कानून साज काउंसिल के अरकान और मुतअद्दिद अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। हुबली शहर में जिला कांग्रेस कमेटी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म आजानी इंदिरा गांधी का यौम पैदाइश मनाया। इस मौके पर कर्नाटक गवर्नमेंट के चीफ विप सलीम अहमद, जिला निगरान वजीर संतोष लाड, जिला कांग्रेस सदर अनिल पाटिल के अलावा कांग्रेस के दीगर लीडरान, ओहदेदारान और ख्वातीन कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस दौरान सलीम अहमद ने मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे अब्दुल रशीद से खास बातचीत की। इन्होंने कहा कि अपनी सियासी जिंदगी के दौरान इन्हें इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ था और वो लोग ऐसे अजीम कायद थे जिनको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। 16 साल से मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे और शहीद हुए मुल्क की एकता के लिए। उनके कार्यकाल में मुल्क बहुत तरक्की करी। बहुत वाजपेयी बोलते थे इंदिरा गांधी को दुर्गा माँ, और पूरी दुनिया उनको आयरन लेडी के नाम से बुलाया जाता था। कर्नाटक असेंबली का सरमाई इजलास 8 से 19 दिसंबर तक बेलगावी में स्वर्ण विधानसभा में मुनक़िद किया जाएगा। असेंबली स्पीकर यूटी कादिर ने इसकी तस्दीक की। इन्होंने बताया कि इजलास के दौरान रियासती उमूर, कानून साजी और अवामी मसाइल पर तफसीली बहस की जाएगी। Winter session will take place from this December 8 to December 19 in Belgavi, Swarna Sauda. See, all the preparations are done. Me and the chairman of the council had a meeting with the secretary. आंध्र प्रदेश कांग्रेस के सदर YS शर्मिला रेड्डी ने आज मीडिया से गुफ्तगू की। इन्होंने विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की मुजवज़ा निजीकारी की सख्त मुखालफत की। इन्होंने कहा कि वैजाग स्टील के हज़ारों मुलाजमीन ने सिर्फ पसीने से नहीं बल्कि खून जिगर से इस इदारे को खड़ा किया। शर्मिला ने इल्ज़ाम लगाया कि स्टील प्लांट को तबाही के दहाने पर सिर्फ इसलिए लाया जा रहा है ताकि वज़ीर-ए-आज़म मोदी इसकी कीमती ज़मीनें अडानी ग्रुप के हवाले कर सकें। That is cruel. Vizag steel plant is definitely not the white elephant. It is our pride. The people of Andhra Pradesh laid their lives to make it a reality. Vizag steel plant is a public sector unit that is the pride of Andhra Pradesh. This is not a white elephant. The employees of the Vizag steel have worked. आंध्र प्रदेश में कांग्रेस रहनुमा शर्मिला ने कहा कि CII समिट के नाम पर वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, जबकि रियासत के लिए कोई हकीकी विजन या ठोस मंसूबा मौजूद नहीं। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि गुज़िश्ता 17 माह में 20 लाख मुलाजिमतों के हुकूमती दावे महज हंगामा आराई और वावेला है। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 11 बरसों से सरमायाकारी के नाम पर आवाम को धोखा दिया गया और मुआहदे सिर्फ कागजों तक महदूद रहे हैं। Today, in the state of Andhra Pradesh, Congress party is demanding the Chief Minister to sign on this bond paper. Just a few days ago, less than 1 week ago, Mr. Chandrababu Naidu had a CII summit in which he claimed that 613 MOU. तेलंगाना हुकूमत ने टेट उम्मीदवारों के लिए एक अच्छी शुरुआत की है। TSAT TET 2026 डिजिटल फ्री कोचिंग प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया। इस मंसूबे का इफ्तिताह वज़ीर इत्तलात D श्रीधर बाबू ने किया। इस नए इक़दाम के तहत 19 नवंबर से टेट के लाइव ओरिएंटेशन सेशन शुरू होंगे, जिसके बाद 44 दिन तक मुसलसल कोचिंग फराहम की जाएगी, जिसमें 200 खुसूसी असबाक शामिल होंगे। कोचिंग के लिए TSAT के 2 चैनलों पर रोज़ाना 4 घंटे की खुसूसी नशरियात होंगी। तेलंगाना के वज़ीर आला ने आज रियासत की ख्वातीन में साड़ियाँ तकसीम करने के प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ किया। 1 करोड़ ख्वातीन के लिए 1 करोड़ साड़ियाँ देने का ऐलान किया गया है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी के यौम पैदाइश के मौके पर इनको खराज अक़ीदत पेश करते हुए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। आज मुनक़िदा तकरीब में वज़ीर आला ने कई मुस्तहिक़ ख्वातीन में साड़ियाँ तकसीम की। हुकूमत ने ऐलान किया है कि पहले मरहले में 9 दिसंबर तक देही इलाकों के 65 लाख ख्वातीन में इंदिरा माँ साड़ियाँ तकसीम की जाएंगी। दूसरा मरहला 1 मार्च से 8 मार्च तक जारी रहेगा, जिसके दौरान आलमी यौम ख्वातीन के तनाजुर में शहरी इलाकों के ख्वातीन में साड़ियाँ तकसीम की जाएंगी।
आंध्र प्रदेश एजेंसी इलाके के मारिडो मेली जंगलाती इलाके में एक और इनकाउंटर हुआ है। चारशंबे की सुबह सिक्योरिटी फोर्सेज और माओनवाजों के दरमियान तसादुम में 7 माओनवाज हलाक हो गए। महलूकीन में 3 ख्वातीन और 4 मर्द शामिल हैं। इन सब का ताल्लुक छत्तीसगढ़ से बताया जाता है कि मरने वालों में माओनवाजों के सरकर्दा लीडर यूजी भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश की पुलिस ने एक मुश्तरका ऑपरेशन के जरिए रियासत के मुख्तलिफ अजला कृष्णा, एल्लूर, एनटीआर, विजयवाड़ा, काकीनाडा और दीगर अजला में कार्रवाई करते हुए सीपीआई माओइस्ट से वाबस्ता 50 मुश्तबा कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। जिम्न में एडीजी इंटेलिजेंस महेश ने मीडिया से बातचीत की। इन्होंने बताया कि पुलिस ने खुफिया इतलात की बुनियाद पर यह कार्रवाई अंजाम दी, जिसमें तंजीम की सरगर्मियों को रोकने के लिए अहम पेशरफ्त हुई है। ఇక్కడ ఉన్నారా టేక్ డౌన్ నడుస్తున్నాయి ఇప్పటి వరకు 50 మెంబర్స్ మావోయిస్ట్ have been arrested. వీళ్ళు 50 మెంబర్స్ ఎన్టీఆర్ డిస్ట్రిక్ట్, కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్, ఏలూరు, కాకినాడ, కోనసీమ 5 డిస్ట్రిక్ట్స్ నుంచి एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए हिंदुस्तान के नौजवान तीरंदाज धीरज ने सोने का तमगा जीता। इस कामयाबी के बाद धीरज आज अपने आबाई शहर पहुंचे, जहां इन्होंने अपने पुराने प्रैक्टिस ग्राउंड का दौरा किया और कोचेस समेत अपने साथी खिलाड़ियों से मुलाकात की। धीरज ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि यह तमगा इनके लिए ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए फख्र की बात है। इंडिया ने इंडिविजुअल इवेंट में रिकर्व इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड जीता है एंड ये जो जीत हासिल करके हम लोग को बहुत खुशी हुआ, क्योंकि आने वाला एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, इन सब के लिए एक बूस्टअप मिला है सारे प्लेयर्स के लिए। एंड हम लोग को भी जो हार्डवर्क हम लोग करते आए एंड जो पेन भी हम लोग सफ़र करते आए इतने सालों से कि हम लोग अच्छा करते जा रहे हैं बट लास्ट मोमेंट में हार जाते। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।